any one of you. Wait. Turn on your camera, all students. Turn on your camera. Last time I'm asking you. Sit at proper place and turn on your camera, where you can focus on your study only. आजू बाजू डिस्टर्बेंस ना हो एवी जगह पर बैसीने कैमरा स्टार्ट करियो. Now, from this lecture, we are directly moving to our core topic of subject. અત્યાર સુધી જે આપણે જોયું, algorithm is also a part of it, but that all are the basic things, that only a knowledge type of thing which you require to know before learning anything in BCA. You have taken admission in BCA, that means what you have to do. શું ભણવાનું આવશે in future. BCA માં એડમિશન લીધું છે તો કંઈક તો વિચાર્યું હશે ને તમે લોકોએ. શું આવશે, કોણ કહેશે? In which direction you have to learn. કોઈ આઈડિયા તો આપ્યો હશે BCA માં ભણશો તો આવું ભણવાનું આવશે એવું? Yes or no? બોલો, કંઈક તો ખબર હશે ને. You can say anything. લોકો એક્ઝામ નથી ચાલતી. થોડું ઘણું ખબર છે. કેટલાક એમ કહેતા કે કોડિંગ સી લેંગ્વેજ આવશે. એક મિનિટ who is speaking? મને નથી દેખાતું. મેમ નામ બોલો પહેલા. કુશ. ઓકે, બોલો. કેટલાક એમ જોઈએ કે તમારે સી લેંગ્વેજ આવશે, પછી બધા કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશનના વિશે થોડું નોલેજ મળશે. Yes, basically when you are learning, so BCA નો મતલબ શું? બેચલર ઓફ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન. એ તો ખબર હશે કે તમે એડમિશન લીધું એક પર્ટિક્યુલર બ્રાન્ચમાં તો એનો કંઈક ગોલ હશે. સો કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન શું છે? સો વી આર બેઝિકલી ગોઈંગ ઇન કમ્પ્યુટર ફિલ્ડ. કમ્પ્યુટરની ફિલ્ડમાં જે બી અત્યારે રિસન્ટ ટેકનોલોજી અને જે બી ચાલે છે, that way all thing we are learning. So the thing which we are learning, that is based on computer. Now application matlab the programming. Application means at the end of programming you can make your own application. matlab koi bhi language અને એના માટે આપણે language જોઈ. That what is computer language, that we know what is computer language, why we write or why we require any computer language. કોને કહેવાય computer language? Languages we know, but what is the purpose of it? એનાથી શું થાય? બોલો. જોઈ લીધું છે ને? યાદ છે કે નહીં? કઈ લેંગ્વેજ હોય કમ્પ્યુટરની? That means you know the name of the language that we discussed already. નથી યાદ? Java, Python. C, C++, Java, Python, so many languages are there. But what is the purpose of any language? Any computer language purpose? No purpose શું હોય? So we are particular software. For interaction with computer we require language. Yeah, that is a for sure normal thing. मैंने ये बहुत ही बार बताया है. Basically why we require language in our, for a human being why we require language? To communicate. मुझे आपके साथ बात करनी है तो उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए, that is called language. तो same way we need medium to interact with computer, तो उसको computer language बोलते हैं. Simple terminology. Then if you have a computer language, so we have a list of languages, C, C++, Java and so on. बहुत सारी है. जैसे ही आप मार्केट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, the languages will become increase. बहुत सारी आती है टेक्नोलॉजी. So basically they are computer language is called, वो लैंग्वेज सीख के आप जो लिख रहे हो उसको बोलते हैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, जो हम स्मार्टफोन में भी यूज कर रहे हैं सारी एप्लीकेशन. तो दैट इज ऑल दी बेस. मतलब लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आपने पकड़ ली, तो फॉर एग्जांपल सी, तो सी में आप कुछ भी कोडिंग लिखोगे, कोडिंग मतलब सी का जो प्रोग्राम राइटिंग होता है उसको बोलता है कोडिंग, सी या एनी लैंग्वेज. So that coding, through coding we are solving one problem, any problem.
तो मैं सिर्फ MS ऑफिस की बात करूं, वी आर यूजिंग MS ऑफिस इन अवर लैपटॉप या डेस्कटॉप, तो उसका कोई पर्पस है कि वो इस तरीके के टास्क करने के लिए ही डिजाइन हुआ है। तो वो जो डिजाइन हुआ किसी ने बनाया, तो वो कैसे बना? थ्रू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके पीछे पूरा कोड किया है, तो उससे आपका ये पर्पस फुलफिल होता है। गेटिंग? ये मैंने बताया है बट फिर भी रिकॉल करवा रही हूँ। सो सेम वे यू कैन मेक एनी एप्लीकेशन, एनी सॉफ्टवेयर। जो प्रोग्राम का कलेक्शन है उसको एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप मोबाइल में व्हाट्सएप भी हम यूज करते हैं, फेसबुक भी यूज करते हैं, या आप कोई गेम खेल रहे हो, तो वो सारी इंडिविजुअल एप्लीकेशन है, हर एक का टास्क डिफाइन है। तो वो एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सीखना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो सी फॉर एग्जाम्पल, तो हमने सी शुरू करना है। इन दिस सब्जेक्ट वी आर लर्निंग सी ओनली in LDP1, that is logic development programming. In that we learn C programming language, because C is the basic programming language. root आपको पता होना चाहिए, root से शुरू करके हम वहां तक जा सकते हैं। So first language is always need to learn, that is C. C के बिना आगे नहीं जा सकते आप। So very important thing in programming is C. Now we are moving for C programming language, but before that we need to know some of the basic things. मुझे उसका बेसिक पता होना चाहिए कि, एंड वन ऑफ द बेसिक थिंग इज एल्गोरिदम, जो हमने देखा लास्ट क्लास में, दैट अगर मुझे कंप्यूटर से बात करनी है, सो आई नीड टू नो द माइंडसेट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक्चुअली तो माइंड होता नहीं, इट इज बेसिकली अ मशीन। बट जैसे हमें किसी पर्सन के, मुझे मेरे फ्रेंड के साथ बात करनी है, सो इफ आई आस्क एनी क्वेश्चन टू माय फ्रेंड, तो मुझे पता होगा कि वो कैसे सोचेगा एंड हाउ ही और शी रिप्लाई, वो कैसे रिप्लाई करेगा, बिकॉज वी नो द माइंडसेट ऑफ दैट पर्सन। तो जब व्हेन आई वांट टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, यू नीड टू थिंक दैट हाउ इट वर्क, वो कैसे काम करेगा। उसका माइंड नहीं है, बट उसको जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे दैट इट विल फॉलो, वो फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। सो बेसिकली कंप्यूटर इज नॉट हैविंग इट्स ओन माइंड, बट द इंस्ट्रक्शन विच यू गिव, हम रोबोट की बात करें, रोबोट इज वन टाइप ऑफ कंप्यूटर ओनली, वो मशीन ही है। So, जैसे रोबोट से बात करना चाहते हैं तो मुझे रोबोट को पहले गाइड करना पड़ेगा, दैट इंस्ट्रक्शन गाइड आई नीड टू प्रोवाइड, और वो गाइड में से कुछ भी टास्क उसको देंगे तो वो जो गाइड के अनुसार जो उसका सोल्यूशन है दैट इट विल प्रोवाइड। सो इनिशियली यू नीड टू प्रोग्राम दैट रोबोट, आपको उसको प्रोग्राम करना पड़ेगा कि अगर ये इनपुट आए तो उसको ऐसा जवाब दो, ये इनपुट आए तो उसको ऐसे टास्क करो, एनीथिंग। सो बेसिकली वी आर कम्युनिकेटिंग विथ मशीन। सो थ्रू दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन मेक दैट प्रोग्राम on your own, और उसके लिए you require this programming language, और before that we require this concept of algorithm, जो क्या है, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। बिकॉज वी आर नॉट नोइंग राइट नाउ एनी लैंग्वेज, हमने सी लैंग्वेज पढ़ना अभी शुरू नहीं किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, वी आर नॉट नोइंग द कंसेप्ट ऑफ सी। सो उसके लिए अगर मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है तो प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिदम जानना जरूरी है। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? कंप्यूटर कैसे सोचेगा और कैसे काम करेगा, वो डिस्क्रिप्शन एल्गोरिदम थ्रू मिलता है। मतलब द इंस्ट्रक्शन विच वी प्रोवाइड इन कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल, हमने वो एग्जांपल देखा था ना एडिशन वाला लास्ट क्लास में। तो एल्गोरिदम्स मींस जो भी स्टेप्स आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन करोगे तो वो सोल्यूशन किस स्टेप बाय स्टेप आप करोगे वो हम मेंशन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। और जब एल्गोरिदम की क्लैरिटी आएगी तो एल्गोरिदम थ्रू आप प्रोग्राम बना सकते हो व्हेन यू गेट योर नॉलेज ऑफ प्रोग्राम। सी लैंग्वेज का कंसेप्ट आ गया तो आप वही एल्गोरिदम का यूज करके यू कैन मेक अ प्रोग्राम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया अभी तक हमने जो किया उसका। एनीथिंग, एनी डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, नो मैम। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम एल्गोरिदम से शुरू करते हैं, तो एटलीस्ट यू हैव टू मेक वन नोट, स्मॉल नोट फॉर योर रेफरेंस। आपको कहीं पे दिखानी नहीं है, कुछ लिखना ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट जो मैं बता रही हूँ पॉइंट वाइज, एटलीस्ट यू कैन मेक अ और राइट अ इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेशन। हर एक सेशन का इम्पोर्टेंट जो है वो आप नोट डाउन कर देना, क्योंकि आपको पता चले कि क्या क्या चल रहा है, और अगर मैं पीछे का रिकॉल कराऊं सो यू कैन इजीली गेट इट। ओके, सो एल्गोरिदम इज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। एल्गोरिदम सबका क्लियर है, मान लो ना ऐसा? यस मैम। एवरीवन?
ओके तो चलो अभी हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या दिया था एग्जांपल में? मैक्सिमम नंबर वाला दिया था या ऑड इवन दिया था? ऑड इवन। ऑड इवन मैम ऑड इवन किया। यस कुछ बताओ चलो। ओके कृतिका, कुछ आपने बात की। कृतिका शो मी योर रिजल्ट। क्या लिखा आपने? आवर क्वेश्चन वाज यू हैव टू राइट एन एल्गोरिथम वेयर यू टेक इनपुट। मैं इनपुट में एक नंबर लूंगी और मुझे चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन। बस उसके लिए आपको स्टेप्स लिखने थे। सो हाउ मेनी स्टेप्स यू रिक्वायर्ड? ओके आई कैंट सी बेटा। सो आप चैट बॉक्स में लिख दो जो आपने लिखा है ना वो। ओके ओके। एनीबडी एल्स? कुछ जितनों ने भी लिखा है यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स, आई कैन सी एंड स्पीक। ओके स्पर्श, यस स्पर्श ने लिखा। लेट्स आई रीड इट। स्टार्ट, स्टेप 1 इज स्टार्ट दैट वेरिएबल ए। तो मुझे आई नीड, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे जितने वेरिएबल प्रोग्राम में चाहिए ना। व्हाट इज वेरिएबल? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको भी लेट्स रिकॉल इट। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? मैंने बताया था कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज बाइनरी, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली एंटर वैल्यू 2 और 3 मुझे ऐड करना है या चेक करना है, तो वो 2 और 3 को नहीं समझता। यू रिक्वायर्ड सम मीडियम, वो जो पर्टिकुलर प्लेस हो वहां पे आप स्टोर करोगे और उस पर प्रोसेस होगा। सो वेरिएबल सुन लो अच्छे से, वेरिएबल क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज इन प्रोग्राम, इसलिए मैं बता रही हूँ। वेरिएबल इज अ स्टोरेज कंटेनर टाइप ऑफ थिंग। वो एक टाइप का बॉक्स है। मतलब अगर मैं कोई भी प्रोग्राम लिख रही हूँ, सो इन दैट प्रोग्राम इफ आई वांट टू यूज सम मेमोरी फर्स्ट, मुझे कोई भी टास्क करना है तो मुझे कंप्यूटर से वो मेमोरी चाहिए जहां पे मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर पाऊं। आई नीड सम प्लेस। अगर मुझे 2+3 करवाना है तो मुझे 2 जब मैं डालूंगी तो 2 जहां पे इंटरनल मेमोरी में कहीं पे स्टोरेज के लिए जगह तो चाहिए। सो यू नीड टू इन्फॉर्म योर कंपाइलर और अ कंप्यूटर दैट आई नीड सम स्पेस टू स्टोर दैट वैल्यू। तो वो एक स्पेस जो बनती है, जो मिलती है आपको, मतलब नंबर स्टोर करने के लिए वी हैव डन फीचर। वो फीचर है एक ऐसा जिसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मींस इट स्टोर्स ओनली, इट इज वन मेमोरी स्पेस वेयर यू स्टोर ओनली वन वैल्यू। एक वैल्यू स्टोर करने के लिए एक प्लेस चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। और वेरिएबल का रूल क्या है? इट स्टोर्स, वो जो प्लेस है वहां पे एक ही वैल्यू स्टोर होती है। इफ यू अपडेट इट तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब आपकी पुरानी वैल्यू चली जाएगी और दूसरी वैल्यू आ जाएगी। वो एक कंटेनर टाइप ऑफ थिंग। तो जो हम उसको नाम देना चाहते हैं वो कंटेनर को, फॉर एग्जांपल मैंने नाम दिया ए, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल ए। तो वो कंटेनर अभी खाली है। वी क्रिएट वन कंटेनर जिसको बोलते हैं डिक्लेयर वेरिएबल ए, जो हमने लास्ट में भी लिखा था। तो दैट इज हमने सिर्फ इन्फॉर्म किया कि आई नीड वेरिएबल ए बनाने के लिए मुझे मेमोरी चाहिए। मेमोरी मिल गई व्हेन यू राइट इट। उसके बाद वी आर इंसर्टिंग वैल्यू इन दैट एट दैट प्लेस। तो अभी मुझे a = 5 जब मैं करना चाहूंगी, मतलब a में 5 वैल्यू डालना चाहूंगी, so at that time we write that read value for a, so that is our second step. तो पहले declare variable and then read variable, so step 2 and 3. अभी वेरिएबल एक ही क्यों चाहिए? बिकॉज मुझे एक ही नंबर पे चेक करना है ऑड है या इवन। So we need only one variable as an input. तो इसलिए हम एक ही वेरिएबल ले रहे हैं, else you can take more also. Okay, is it clear till now what is variable? Yes ma'am. Okay. अभी हमने वेरिएबल ले लिया, स्पेस बना दी मेमोरी में, फिर उसमें वैल्यू भी डाल दी। अभी व्हाट इज अवर गोल? मुझे चेक करना है कि ऑड है या इवन। सो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशन डालनी पड़ेगी, दैट आई नीड टू चेक द गिवन नंबर इज ऑड और इवन। तो कोई भी नंबर ऑड इवन कैसे पता चलता है? वो मैथमेटिकल लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। हम वी नो दैट 1 3 5 7 is odd and 2 4 6 8 is even, but there is some logic behind it. वो कैसे हमें पता चलता है? Divide by 2. Yes, so you need to provide this step that if
the number which you add, a divided by 2 है, if a is divisible by 2 then it is even, else it is odd. मतलब divisible by 2 होगा वो even होगा, वरना वो odd होगा. So उसके लिए वो step हम लिखेंगे, that is your step number 4. पहला start, then declare, then read, and then step 4 पे we are checking condition. और फिर step 5 में we are writing that if print if number is odd, else print number is even, or anything you can write. तो आप उसी स्टेप में लिख सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हो, एंड देन स्टॉप द टास्क. डिस्प्ले हमने कर दिया उस स्टेप पे. आई विल शो यू. किसी को कुछ पूछना है? सी Is it visible? Yes, ma'am. देखो, Yes, ma'am. यहाँ पे तो सिर्फ 4 स्टेप में भी कर दिया है, बट यू कैन इलाबोरेट इट. 1 में 2 नहीं लिखना है, जितना लंबा हो सके उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पहला स्टेप इज राइट स्टार्ट, देन टेक एनी नंबर एंड स्टोर इट. वहां पे देखो स्टेप 2 और 3 को मर्ज कर दिया, इसलिए दोनों टास्क एक में लिखा है. एक्चुअली इट इज नॉट ओके. आप हर एक स्टेप को बाइफरकेट करो, सो दैट इज विल बी बेटर. सो टेक एनी नंबर मतलब वो डिक्लेयर, एंड देन स्टोर इन एन, सो मतलब उसको स्टोर करवाओ. डिक्लेयर एंड रीड बोथ, वो ऐसे लिखा है. देन स्टेप इज इफ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2, मतलब डिविजिबल बाय 2 ऐसा भी लिख सकते हो, या मल्टीपल ऑफ 2. सो इट इज इवन, तो वो प्रिंट करो, इट इज प्रिंट इवन, वरना प्रिंट ऑड. सो यू कैन प्रिंट इट एंड स्टॉप द टास्क. बाकी लोगों ने जिन्होंने शेयर किया है वो मेथड सही है, वो अच्छे से लिखा है. एटलीस्ट यू रिक्वायर्ड टू राइट 5 स्टेप्स. ये 2 स्टेप को आपको बाइफरकेट करके लिखना है. इट इज नॉट सो क्लियर. ओके, बोलो, इज देयर एनी क्वेरी? नो मैम. ऑल स्टूडेंट्स वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हो कब से? No, ma'am. और आधे लोगों ने तो किया भी नहीं ऑन. ओके, तो टुडे विल मूव फर्दर. तो ये सारा हुआ एल्गोरिथम. प्राइम और नॉट, अगर वो भी देखना हो तो देख लो. देखो, दिस इज वन अनदर एग्जांपल कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो, राइट इन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट. तो लॉजिक, प्राइम नंबर्स का कुछ लॉजिक है दैट यू नीड टू थिंक, एंड देन यू कैन शेयर इट. और सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि जहां जो मैंने लिखा है वही होना चाहिए. यू कैन राइट एनी सॉल्यूशन फ्रॉम योर साइड. सेम वे ये मैं अभी नहीं दिखाती क्योंकि आप फिर ट्राई नहीं करोगे. ओके, सो प्राइम नंबर का आपको ट्राई करना है, खुद से लिखना है, जैसे ये ऑड इवन का किया है ऐसे एल्गोरिथम. करोगे ना? तो ट्राई इट. हर रोज एक दो एल्गोरिथम फ्लो चार्ट लिखोगे. अभी मैं फ्लो चार्ट करवा रही हूँ, तो आपको प्रैक्टिस होती जाएगी एंड क्लैरिटी भी आती जाएगी कि हाउ वी राइट. सो टुडे विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. So I hope all are clear till algorithm. जो लोग नहीं बोल रहे, I know some are attentive and some not. तो मैं जो नहीं बोल रहे उनको पूछ रही हूँ. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So अभी सबको क्लियर है. नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पूछने वाली हूँ. ओके, किसी को भी. So be ready with that. पता चल गया तो यू कैन स्पीक एनीथिंग. मैं कोई भी एक फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम दूंगी. सो लेट्स मूव फर्दर. व्हाट इज फ्लो चार्ट? इट इज आल्सो वेरी सिमिलर एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. सो आई एम रीडिंग इट. सो इट इज अ डिफाइन द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस which describe the sequence and flow of control and information within a process. ये थोड़ा लंबा लिखा है. इफ आई गिव इट अ शॉर्ट डेफिनेशन, दैट फ्लो चार्ट जो हमने एल्गोरिथम में लिखा, लाइक स्टेप वाइज बाइफरकेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. दैट्स इट. मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम हमने एडिशन का किया या ऑड इवन किया, उसका ग्राफिकल फॉर्म में जो हम यूज करेंगे और लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट. Now again reading, it is a defined as a pictorial representation, मतलब
ग्राफिकल, ऑफ अ प्रोसेस, जो प्रोसेस आपको करना है, ऑड इवन चेक करना है तो ऑड इवन, एडिशन करना है तो एडिशन, विच डिस्क्राइब सीक्वेंस एंड फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो आपको सीक्वेंस बताएगा कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, ऐसे आपको करना है। एंड इंफॉर्मेशन विद इन अ प्रोसेस, जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है प्रोसेस के लिए वो सारा फ्लो के साथ दिखाएगा, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। A flow of information is represented inside the flow chart in a step by step form. मतलब जो उसके लिए फ्लो चार्ट के लिए we have a defined symbols, उसके कुछ defined symbols है। जो सिंबल में आप स्टेप लिखोगे, आपके जो स्टेप अपने एल्गोरिथम में डायरेक्ट लिखे थे इंग्लिश वर्ड्स में और इंग्लिश स्टेटमेंट्स में, that you write in that symbols. So I'll show you how actually it look. एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बाद में देखते हैं। These are the symbols. देखिए, you can see this. फ्लो चार्ट बनाने का ये मेथड है, ये सिंबल का यूज करके यू कैन राइट योर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे लिखना है दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन, बट पहले देख लो, अगर मैं इफ आई कंपेयर इट विथ योर प्रीवियस एग्जांपल ऑफ एडिशन, एल्गोरिथम में हमने एडिशन किया था राइट, तो हम उसमें हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, तो स्टार्ट के लिए एंड एंड के लिए यहाँ पे सिंबल डिफाइन है। देखो जो फर्स्ट वाला जो सिंबल है दैट इज राउंडेड रेक्टेंगल, सो दैट इज कॉल्ड वी यूज इट। तो हम क्या करेंगे, ये सिंबल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे स्टार्ट। देन वी हैव एरो, एरो से उसको फ्लो में दिखाएंगे, सो वी यूज एरो, डाउन एरो विथ, आफ्टर दैट अवर स्टेप इज डिक्लेयर वेरिएबल, था डिक्लेयर वेरिएबल ए और बी एडिशन के लिए सोचे तो डिक्लेरेशन मतलब हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, हम इंटरनल प्रोसेसिंग मतलब मेमोरी ऑक्यूपेशन वो सीपीयू काम करता है उसमें, तो वो जो प्रोसेसिंग पार्ट है उसके लिए एक सिंबल डिफाइन किया है, देखो दैट इज सेकेंड लास्ट नॉर्मल रेक्टेंगल। जो भी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, प्रोसेस जो भी आप कर रहे हो, दैट यू नीड टू राइट विद दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनाओ और उसके अंदर लिखो वो वाला स्टेप। गेटिंग? Then again arrow. Yes, Kush, want to say anything? No, ma'am. Okay. Then again arrow. Now what was our third step? That read value of A and B. ऐसा था ना कि हमने प्रोसेस के लिए मेमोरी ले ली, डिक्लेयर कर दिया, फिर हम रीड करवा रहे हैं। So third step is read. So read मतलब we are taking input. So for input we have this box 3, symbol 3. इसको बोलते हैं parallelogram. That slanted rectangle type of thing. So वो वाला slanted rectangle लिख के उसके अंदर लिखेंगे हम read value of A and B. Then again arrow. फिर उसके बाद क्या था, अगर हम एडिशन कर रहे हैं, so we take one additional variable result. That add result equal to A plus B and display result. दो स्टेप ऐसे थे। तो प्रोसेस कर रहे हैं हम, रिजल्ट के लिए हम एडिशन करवा रहे हैं, जो रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी, सो दैट इज बेसिकली एडिशन। इट इज एन इंटरनल प्रोसेस बाय सीपीयू। तो अगेन वी यूज दिस प्रोसेस ब्लॉक रेक्टेंगल, उसके अंदर वो लिखेंगे एंड देन वी डिस्प्ले द रिजल्ट। तो डिस्प्ले इज एन आउटपुट थिंग, डिस्प्ले आपको आउटपुट में दिखेगा, तो वो आउटपुट प्रोसेस हुई। सो अगेन वी यूज दिस पैरेललोग्राम और उसके अंदर लिखेंगे डिस्प्ले रिजल्ट एंड फर्स्ट सिंबल दैट इज एंड विथ एरो। सो ऐसे जो रिप्रेजेंट करेंगे तो यू विल गेट द एक्चुअल स्टेप, तो हमारे पास है ही, और उसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, इनपुट होती है, प्रोसेस होती है, या एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट एवरीथिंग यू कैन डिफाइन विद दिस फंक्शनैलिटी ऑफ बॉक्सेस और सिंबल्स। गेटिंग? Yes, ma'am. Yes. So now let's see the advantages of फ्लो चार्ट। अगर हम ऐसा बनाए, अगर एल्गोरिथम हमारा ऐसा है एंड उसके बेस पे वही सेम उसका फ्लो चार्ट बनाए, तो उसके क्या फायदे मिलेंगे। तो फ्लो चार्ट इज द गुड वे ऑफ कन्वेइंग लॉजिक ऑफ द सिस्टम, जिससे आप किसी को सी ऑब्वियसली व्हेन वी थिंक कि हम कोई भी चीज रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं, तो विच विल बी द इजी वन, हमें कौन सा पहले, हम कौन सा चूज करेंगे। दोनों एक ही टेप, तो एक स्टेटमेंट दो वे से और एक कंसेप्ट दो मेथड से समझाया है, वन ग्राफिकल और वन पैराग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू। सो विच विल चूज फर्स्ट?
ग्राफिकल हम पहले देखेंगे ना, जिससे आपको इजी, मतलब कोई भी विजुअलाइजेशन ग्राफिकल जो मिलता है तो वो इजी लगता है। तो हियर आल्सो इट इज अ ग्राफिकल और अ पिक्टोरियल फॉर्म, जिससे आपको पूरी प्रोसेस का फ्लो अच्छे से पता चलेगा एल्गोरिदम के जैसे ही। बट एल्गोरिदम में हमें रीड करना पड़ेगा और वो सोचना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत, बट हियर इट इज इजी, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स सेम। Facilitates the analysis of a problem, then provide proper documentation, easy identification of errors and bugs। हम प्रोसेस को बाइफरकेट करेंगे तो ये सारा फायदा तो मिलेगा ही। कि errors and bugs वर्ड का मीनिंग पता है? एरर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? Mistake. यस, मिस्टेक्स ऑफ एनी लाइन फ्रॉम योर प्रोग्राम, उसको बोलते हैं एरर। बग्स भी वही बोलते हैं, एरर और बग्स बोथ आर सिनोनिम्स। तो इट डायरेक्ट्स द प्रोग्राम डेवलपमेंट, मतलब फ्लो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम हम जब उसका बनाएंगे तो इसी फ्लो में आपको लिखना है प्रोग्राम का कंटेंट। एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोग्राम बिकम इजी, उसको अच्छे से पता चल सकता है। एंड डिसएडवांटेजेस, द कॉम्प्लेक्स लॉजिक कुड रिजल्ट अ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट। अभी आपने 6 लाइन का फ्लो चार्ट बनाया सो इट इज इजी, बट मे बी अगर हम पूरी वेबसाइट का फ्लो चार्ट बना रहे हैं उसमें कितने सारे फ्लो होंगे। अगर मैं सिंपल बात करूं, दैट इफ आई कंसीडर Amazon, तो Amazon इज बेसिकली वन एप्लीकेशन और अ वेबसाइट। वो वेबसाइट एक पूरी सिस्टम है, तो जिसका फ्लो कैसे जाएगा कि आप पहले ये स्टेप करो देन ये, तो उसका फ्लो चार्ट कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा। सो फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। Then a flowchart must be recreated to employ modification and alteration। मतलब अगर अभी हम क्या सोच रहे हैं कि जैसे ही मैंने Amazon का एग्जांपल दिया, we all know what is Amazon and how it work, तो वो एक एंड प्रोडक्ट है। बट जब Amazon बना नहीं था तब किसी ने सोचा होगा ना कि मुझे ऐसा कुछ बनाना है, राइट? सो वो व्हेन यू थिंक फॉर दैट, तो उस टाइम पे 100% क्लैरिटी नहीं होती। आप थोड़ी रिक्वायरमेंट लेके बैठे के पहले ये करूं फिर इसके पीछे ये सोचूं, तो फिर उस फ्लो में आप जा रहे हो। बट मे बी एट इन बिटवीन यू फील कि ये फीचर ऐड किया होता इनिशियली तो उसका फायदा मुझे यहाँ पे मिलता है। ऐसा हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, कुछ नया चीज इन्वेंट कर रहे हो, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। सो एट दैट टाइम आपने वो बना दिया पहला स्टेप, और फिर आपने सोचा कि उसमें ये रिक्वायरमेंट में चेंज करना था, ये कुछ ऐसा डालूंगी, तो फ्लो चार्ट आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो वो रिडंडेंट टास्क हो गया। अल्टरेशन इज नॉट सुटेबल, वो फिर से डायरेक्टली मैप नहीं हो जाएगा, आपको फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। बट ओवरऑल एडवांटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो डिसएडवांटेजेस आर नेग्लिजिबल, यू कैन से। तो ये सिंबल का यूज करें। देखो अभी फ्लो चार्ट कैसा होगा, यही एग्जांपल जो मैंने बताया। यू कैन सी अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट सिंबल स्टार्ट और एंड के लिए सिंबल फिक्स ही है कि आपको यही यूज करना है। फिर सेकेंड इज डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम। सो डिक्लेरेशन इज अ प्रोसेसिंग पार्ट, इंटरनल होता है, तो प्रोसेस वाला रेक्टेंगल लिया है देखो सिंबल में। देन यू अगेन एरो ऐड करो, देन वी रीड num1 एंड num2। तो वो हमने num1 num2 यूजर से इनपुट करवाया, मतलब मैंने num1 में 2 डाला और num2 में 3 डाला, सो इट विल ऐड 2 + 3, बट वो वेरिएबल थ्रू होगा। सो दैट इज अ स्लैंटेड रेक्टेंगल विच इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, जिसमें आपको लिखना है। देन अगेन एरो, फिर प्रोसेसिंग। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सम इक्वल टू a + b नहीं है, सम इक्वल टू num1 + num2 है, ये कंसिडर मत करना, a + b हमने लिया ही नहीं है। So you have to consider sum equal to num1 + num2, ये मिस्टेक है। ओके, सो वो हो गया। फिर से इंटरनल प्रोसेसिंग, आपने वैल्यू दे दी, फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा ना एडिशन का, सो प्रोसेसिंग विद द रेक्टेंगल पार्ट। देन प्रोसेस होने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिला, जो इसका एडिशन 5 आया, 2 + 3 आपने डाला है तो उसका एडिशन का रिजल्ट 5 मुझे मिला। तो वो 5 आप जब तक सीपीयू और मॉनिटर में देखोगे नहीं, आपको नहीं पता चला प्रोसेस होगा। सो वो एक आउटपुट क्रिएट हुआ आपका, तो दैट वी आर डिस्प्लेइंग। सो वो डिस्प्ले आउटपुट के लिए अगेन पैरेललोग्राम, जिसपे आप लिखोगे डिस्प्ले सम। तो हो गया आपका कंप्लीट टास्क, एंड देन यू स्टॉप। इज इट क्लियर?
बोलो, इसमें Yes, किसी को ma'am. कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो ऐसे आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो विद दिस सेम एग्जांपल्स। See to it carefully and still if you have any query you can ask. Symbols मैं फिर से दिखा देती हूँ। Mainly you need to remember the symbols. उसके बाद जो मैं लिखा ही है उसका फंक्शन क्या टास्क के लिए यूज होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना हो तो। देन आई विल गिव यू द एग्जांपल्स, तो आप उसका फ्लो चार्ट बना सकते हो। इससे भी ज्यादा सिंबल्स है बट यूजुअली आपको अभी यही सिंबल्स का यूज करना होगा। जो बड़े हायर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में जो सिंबल्स यूज होते हैं दैट वी आर आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर राइट नाउ। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, अभी इतना ही यूज करना है। बोलो, अभी किसी को कुछ पूछना हो? एनीवन? दैट मीन्स may I consider that you all are getting this point clearly? Yes, ma'am. 100%. So I will ask in next class. डाउट हो तो अभी पूछ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में बैठे मत रहना, जब मैं पूछूंगी तब। अभी से बता रही हूँ कि I will ask anything in next class, और किसी को भी पूछूंगी। ऐसा नहीं है जो लोग वीडियो बंद करके बैठे हैं मतलब उनको कुछ नहीं पूछेंगे मैम, ऐसा नहीं होगा। I will ask anyone of you. तो अभी से बता रही हूँ कि रीड कर लो, डाउट हो तो पूछ लो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू, आर यू ऑल गेटिंग एवरीथिंग? मतलब मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें आपको सबको पता चल रहा है ना? मेथड ऑफ टीचिंग इज कंफर्टेबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then Yes, ma'am. say anything other if you have any issue or anything. कुछ नहीं पता चला कि मैम ज्यादा इंग्लिश में बोल रहे हो या ऐसा कुछ, मतलब लैंग्वेज मैं इसलिए दोनों लैंग्वेज का यूज कर ही रही हूँ, बट इफ एनीवन इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम यू कैन शेयर, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। बट वी आर राइट नाउ इन इंग्लिश मीडियम ऑब्वियसली, सो टोटल गुजराती या हिंदी में तो सेशन होगा नहीं, सो यू हैव टू बिल्ड दैट एबिलिटी और दैट स्किल दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड लर्न। शायद आप बोल नहीं पा रहे हो, दैट इज ओके, बट समझ तो आ ही जाता है ना, तो दैट आई नो। And you have to develop that habit to speak in English. नहीं आता तो भी बोलने का ट्राई करना ही है। So that gives you, after that you will get improvement. Okay, so shall we conclude? आज हम यही देखेंगे। आपको होमवर्क में क्या करना है? I have shown one example, जो odd even वाला हमने देखा आज, algorithm, उसका ही फ्लो चार्ट आपको बनाना है। एक मिनट, no, I will give you, no, odd even का नहीं होगा because I need to show you डिसीजन का एक यूज मैं आपको फिर से बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। सो आई एम राइटिंग वन इक्वेशन, उसका आपको सॉल्यूशन देना है। मैंने शेयर किया है क्वेश्चन इज ड्रॉ फ्लो चार्ट विच कन्वर्ट इंसर्टेड अमाउंट इनटू डॉलर, अमाउंट ऑफ डॉलर इनटू रुपीज। मतलब मैंने एक वैल्यू दी है इन फॉर्म ऑफ डॉलर, मतलब कोई भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 100, तो वो 100 का इक्विवेलेंट रुपीज कितना होगा दैट यू नीड टू फाइंड, और उसका फ्लो चार्ट आपको बनाना है। यू कैन कंसिडर डॉलर रुपी कन्वर्जन एज 70, दैट इज ओके। 70 कंसिडर करके आप ले सकते हो। डॉलर का रुपीज और रुपीज का डॉलर कन्वर्जन करना हो तो वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ 70 तो हो जाएगा। जो मैथमेटिकली हम करते हैं मैन्युअली वही करना है, उसके लिए सिर्फ आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है।
दैट हाउ मच इनपुट यू रिक्वायर, और डिस्प्ले आपको क्या करना है आउटपुट में, वो सोच के यू हैव राइट फ्लो चार्ट। ओके, गेटिंग क्वेश्चन? मैम यस मैम। यस मैम। मैंने चेक बॉक्स पे लिखा वो आंसर सही है मैम? कौन कौन बोल रहा है? जीवेश। जीवेश नहीं, आपने लिखा है वो मेथड रॉन्ग है। एल्गोरिदम ऐसे नहीं लिखते, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे कोलन करके ही यू हैव टू राइट। सो दिस इज रॉन्ग। मैंने दिखाया था ना जो अभी, उस वे में आपको लिखना है। एंड ऑलवेज स्टार्ट एंड स्टॉप इज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन, वो होना ही चाहिए। वेट, आई एम शेयरिंग अटेंडेंस लिंक एंड देन यू कैन लीव। अटेंडेंस फिल अप करके आप लीव कर सकते हैं। I have sent question already. मैं चैट बॉक्स में क्वेश्चन शेयर कर दिया है सबको, और ये लिंक भी शेयर कर दी अटेंडेंस की। Okay, I have shared it once again. देख लो क्वेश्चन। Okay, so once you're done with your attendance, you can leave the meeting, and still if you have any query, you can ask me in class. Else you can leave.